السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ کیو میکس کرسٹل، اکبر باغ، ملک پیٹ، کیو میکس خزرہ، ہمایوں نگر، رائل کالونی، کیو میکس پارک ویو، پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، کیو میکس مجیب، الکاپور مین روڈ، کیو میکس امپیریل، عزیزیہ مسجد، مہدی پٹنم، کیو میکس گیلیکسی، پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، کیو میکس امیزہ، عزیز باغ، شیخ پیٹ، کیو میکس عارف آرکیٹ، الکاپور مین روڈ، کیو میکس خادری، ستیہ کالونی، شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ، شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملا پلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس، انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ لاکھوں بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف، عرفات کی وادی سفید چادر سے ڈھک گئی۔ لبیک اللہم لبیک، اور اللہ کی حمد و ثنا سے فضائیں معطر۔ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، صبر کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ مسجد نمراہ میں خطبہ حج۔ آنے والے حالات کے پیش نظر پانی کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے، شہر میں پانی کی قلت پیدا نہ ہو۔ ریاستی وزراء کا اعلیٰ سطحی اجلاس، مانسون کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ رجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام کی تکمیل پر 2 تا 12 جون ریاست بھر میں اختتامی تقاریب شاندار پیمانے پر منانے کا فیصلہ، کابینی سب کمیٹی کا اجلاس۔ شامیر پیٹ تحصیلدار ڈرائیور کے ذریعے رشوت لینے کے معاملے میں گرفتار، ACB کی کارروائی۔ اور کومپلی کے علاقے میں دکان میں داخل ہو کر طلائی چین چھیننے کی کوشش، خاتون کے ساتھ مار پیٹ کرنے والا سارق رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، پولیس کے حوالے۔ آٹو اور دوسری گاڑیوں کی بیٹریوں کا سرقہ کرنے والے 2 سارق گرفتار۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک تمام حمد و ثنا تعریف تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اللہم لبیک، ان صداؤں سے آج مسجد نمراہ کا احاطہ اور میدان عرفات گونج اٹھا۔ عرفات کی وادی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے معطر ہے، لاکھوں بندگان توحید حج کی سعادت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ خطبہ حج کے بعد
ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ وقوف عرفات کے موقع پر رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نظر نہیں آیا، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت نظر آئی۔ سب ایک ہی لباس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ مساوات کا یہ عظیم اجتماع دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ آج صبح سے ہی میدان عرفات کا احاطہ سفید چادر سے ڈھکا ہوا دیکھا گیا۔ جبل عرفات کے پاس صبح سے ہی حجاج جمع ہونا شروع ہوئے تھے۔ حجاج ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اپنے رب کے آگے اشکبار آنکھوں سے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھے گئے۔ خواتین اور معمرین کی بڑی تعداد بھی جبل عرفات پر دیکھی گئی۔ ایک منظر روح پرور نظر آیا۔ حجاج اکرام عصر کے بعد تک میدان عرفات میں قیام کریں گے۔ وقوف عرفات کے بعد حجاج اکرام مزدلفہ روانہ ہو گئے، وہاں وہ رات گزاریں گے۔ نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک حجاج اکرام ذکر الہی اور دعاؤں میں مصروف رہیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے رات میں ہی کنکریاں جمع کی جائیں گی اور پھر چہارشنبے کی صبح بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے مینا کی طرف کوچ کریں گے۔ رمی جمار کے بعد سنت ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے قربانی دی جائے گی اور اس کے بعد حجاج کرام بال کٹوا کر احرام کھول دیں گے۔ خیرآباد میں واقع جل منڈلی کے ہیڈ آفس میں ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر اور حیدرآباد ضلع انچارج وزیر پونم پربھاکر نے وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین کے ساتھ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں میٹرو واٹر ورکس کے ایم ڈی اشوک، حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ کے ڈائریکٹر سدرشن، جے ایم ڈی میانک متل اور مختلف محکمہ جات کے افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں شہر میں پینے کے پانی کی فراہمی، ٹینکر خدمات، مانسون کی تیاریوں، جاری بنیادی ڈھانچہ ترقیاتی کاموں اور ایس ٹی پیز کی دیکھ بھال سمیت مختلف امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اعلیٰ افسران نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے شہر میں پانی کے مسائل، دریاؤں کے تحفظ اور پانی کی سپلائی سے متعلق امور وزیر کے سامنے پیش کیے۔ وزیر پونم پربھاکر نے ہدایت دی کہ آنے والے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کے تحفظ پر خصوصی توجہ دی جائے اور زیر زمین پانی کی سطح بڑھانے کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ افسر ذمہ داری کے ساتھ کام کریں تاکہ شہر میں پانی کی قلت پیدا نہ ہو۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ریاست بھر میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے ای وی گاڑیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے اور ٹرانسپورٹ محکمہ سرسبز تلنگانہ کے ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ریاست میں 99 روزہ پرجا پالنا پرگتی پرنالیکا پروگرام کی کامیاب تکمیل کے موقع پر حکومت نے 2 جون سے 12 جون تک ریاست بھر میں اختتامی تقریبات شاندار انداز میں منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹی وکرمار کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں منعقدہ کابینہ سب کمیٹی اجلاس میں لیا گیا۔ اجلاس میں وزراء اتم کمار ریڈی، ڈی سریدھر بابو اور پنگلیٹی سرینیواس ریڈی نے شرکت کی۔ کابینی سب کمیٹی نے ہدایت دی کہ 12 دنوں تک گرام سبھا، منڈل، حلقہ اور ضلعی سطح پر عوامی شراکت داری کے ساتھ مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں۔ ان میں ماحولیاتی ہفتہ، سڑک تحفظ مہم، منشیات مخالف بیداری، خواتین اور بچوں کے تحفظ، رہائشی تعمیرات، سیاحت کے فروغ، شہری ترقی اور گرین انرجی پروجیکٹس کے افتتاح و سنگ بنیاد شامل ہوں گے۔ اجلاس میں اندرا خاندان جیون بیمہ اسکیم کے نفاذ پر بھی تفصیلی غور کیا گیا۔ حکومت نے واضح کیا کہ ریاست کے ہر خاندان کو سماجی تحفظ فراہم کرنا اس اسکیم کا بنیادی مقصد ہے اور ہر مستحق خاندان تک اس کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اسکیم کے تحت ریاست بھر میں گھر گھر سروے کیا جائے گا تاکہ ہر خاندان کا مکمل ڈیٹا جمع کیا جا سکے۔ اگر کوئی خاندان سروے سے محروم رہ جائے تو ان کے لیے خصوصی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ حکومت بڑے پیمانے پر بیداری مہم بھی چلائے گی تاکہ عوام کو اسکیم کے فوائد سے آگاہ کیا جا سکے۔ حکومت نے اس بیمہ اسکیم کے لیے خصوصی لوگو تیار کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جبکہ سروے مکمل ہونے والے ہر گھر پر لوگو والے سٹیکرز لگائے جائیں گے۔
चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने तमाम महकमों को फौरी तौर पर जामे एक्शन प्लान तैयार करके पेश करने की हिदायत दी। इजलास में डीजीपी सीवी आनंद, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, विकास राज, नवीन मित्तल, वानी प्रसाद, दाना किशोर और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने सिंगारेणी इंतजामिया को हिदायत दी है कि मौजूदा मसाबकती माहौल में कंपनी को मजबूत रखने के लिए दूसरी रियासतों में नए कोल ब्लॉक्स हासिल किए जाएं। उन्होंने आला मियार के कोयले की फरोख्त पर भी तवज्जह देने का मशवरा दिया। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में मुनक़दा जायजा इजलास में वज़रा, कोल बेल्ट अरकान असम्बली और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में सिंगारेणी और कोल बेल्ट इलाके की तरक्की, नए कोल ब्लॉक्स के हुसूल और मुकामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत सिंगारेणी कंपनी की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि 10 बरस में नए कोल ब्लॉक्स हासिल नहीं किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने सिंगारेणी की तोसी ओडिशा तक की है। नायब वज़ीर आला ने ऐलान किया कि कोल बेल्ट मसाइल पर अब हर 15 दिन बाद जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा ताकि अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ और मसाइल पर अमल दरामद का जायजा लिया जा सके। टेस्ला की तोसी का मनसूबाबंदी के सिलसिले में टेस्ला इंडिया के नुमाइंदों ने वजीर पूनम प्रभाकर से मिनिस्टर क्वार्टर्स में मुलाकात की। इस मुलाकात में टेस्ला इंडिया के जनरल मैनेजर श्रद्धा अग्रवाल और पब्लिक पॉलिसी और बिजनेस डेवलपमेंट शोबे के राजिद भी शरीक हुए। इजलास में कंपनी के डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल, सेल्स सर्विस, डिलीवरी मराकज़, सुपर चार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और तेलंगाना में मुकम्मल EV इकोसिस्टम की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि इन इक़दामात से रियासत में पायदार ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मजबूत बनाने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। निज़ामाबाद ज़िले कांग्रेस कमेटी के ज़र एहतमाम एक वसी सतही इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास की सदरत DCC सदर मलिक अर्जुन ने की, जबकि TPCC सदर वो MLC महेश कुमार गौड़ और सरकारी मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर अरकान असम्बली, TPCC कोऑर्डिनेटर्स, ज़िले और मंडल सतह के कांग्रेस कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को बूथ सतह से मजबूत बनाने के लिए कारकुनान को भरपूर मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाना कारकुनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने दावा किया कि मुफ्त बस सफर से लेकर बारीक चावल की फराहमी तक रियासत में ऐसी फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं जो मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं। साथ ही कहा कि रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग मिला है और जात पात मरदमशुमारी भी शफाफ अंदाज में मुकम्मल की गई। महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि BRS दौरे हुकूमत में किसान मुश्किलात का शिकार रहे, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत 75 लाख मेट्रिक टन धान खरीदने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम करने वाली हुकूमत है और BRS और कांग्रेस हुकूमतों के दरमियान फ़र्क अवाम बखूबी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुकामी इदारजाती और बलदियाती इंतखाबात में कांग्रेस ने 75% से ज़ायद नशिस्तें हासिल की और आइंदा इंतखाबात में ज़िले में क्लीन स्वीप किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बेघर गरीबों को मकानात फराहम करना सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ख्वाब है। साथ ही तालीम और सेहत के शोबों को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि साबिक वजीर आला KCR रियासत को 7 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डालकर चले गए, जबकि वजीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा मुश्किलात के बावजूद हिम्मत के साथ हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कारकुनों से कहा कि वो मेहनत करें, पार्टी उनकी खिदमात को जरूर तस्लीम करेगी। तेलंगाना भवन में कोयलाकान मजदूरों की रियासती मजलिस आमिला का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वजीर और डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हरीश राव ने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद सिंगारेणी की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। उन्होंने कहा कि एक वक्त में सिंगारेणी खुशहाली की अलामत थी, मगर अब बदउनवानियों का मरकज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला KCR के दौर में 19,000 मुलाजमतें फराहम की गईं, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत मुलाजमतें ख़त्म करने में मसरूफ़ है। उनका इल्ज़ाम था कि कांग्रेस हुकूमत सिंगारेणी वसाइल को लूट रही है और बकाया जात में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। हरीश राव के मुताबिक 2014 में सिंगारेणी के बकाया जात सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए थे, मगर कांग्रेस के 2.5 साल दौरे हुकूमत में ये रकम बढ़
बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि सिंगारेनी को बिजली वाजिबात की मद में भी 20,000 करोड़ रुपए की अदायगियां बाकी हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सिंगारेनी जहां पहले फिक्स डिपॉजिट्स होते थे, अब ओवरड्राफ्ट पर चल रही है। उनका कहना था कि सिंगारेनी की वेबसाइट पर 40 लाख मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक दिखाया जा रहा है, जिसकी मालियत तकरीबन 1600 करोड़ रुपए बनती है, मगर ये कोयला कहां है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। हरीश राव ने सोलर पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स में कमीशन खोरी के इल्जामात भी लगाए। उन्होंने कहा कि मंसूबों के लिए पीपीए और डीपीआर मंजूरी के बगैर ही सिविल वर्क शुरू कर दिया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी से मुतालबा किया कि तेलंगाना में मौजूद 40 लाख मीट्रिक टन कोयले के जखीरे के सबूत अवाम के सामने रखे जाएं। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि कोयलाकारों में मुबैना बदउनवानी की तहकीकात के लिए बनाई गई मरकजी कमेटी की रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में जारी की जाए। कांग्रेस के रुकन असेंबली विमला वीरेशम ने बीजेपी को धान खरीदारी के मामले में तामीरी तजावीज देने का मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शदीद गर्मी के बायस हमाली मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं, ताहम नकरिकल हलके में एक हफ्ते के अंदर धान खरीदारी मुकम्मल की जा रही है और अवामी नुमाइंदे मुसलसल खरीदारी मराकज की निगरानी कर रहे हैं। वीरेशम ने टी हरीश राव पर तनकीद करते हुए कहा कि जब वो सिविल सप्लाई वजीर थे तब भी 20 जून तक धान खरीदारी जारी रही थी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हक़ाइक़ जानने के बावजूद हरीश राव सिर्फ सियासी ड्रामे और सियासी फायदे के लिए धरने दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मकई और सोया की खरीदारी मरकज नहीं करता, सिर्फ इमदादी कीमत का ऐलान करता है, मगर इसके बावजूद हरीश राव अवाम को गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी तेलंगाना के सदर एन रामचंद्र राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस, बीआरएस और मजलिस पार्टियां मिलकर हैदराबाद शहर को नुकसान पहुंचा रही हैं। कुकटपल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत दोनों ही मजलिस के इशारों पर चल रही हैं और अवाम को धोखा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले डबल बेडरूम घरों के नाम पर गरीबों को धोखा दिया गया और अब कांग्रेस इंदिरम्मा हाउसिंग के नाम पर अवाम को गुमराह कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जीएचएमसी को 3 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज़ सिर्फ मजलिस को फायदा पहुंचाने के लिए लाई जा रही है। रामचंद्र राव ने शहर में पानी की किल्लत, खराब सड़कों, सैलाबी मसाइल और जीएचएमसी की नाकामियों पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शहर में लोग टैंकरों पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि बारिश के दौरान कई बस्तियां ज़ेरे आब आ जाती हैं। उन्होंने हेल्थ पॉलिसी के नाम पर बड़े रियल एस्टेट घोटाले का इल्जाम भी लगाया और कहा कि सनतों की मुंतकिली से रोजगार मुतासिर होगा, मगर हुकूमत ने कोई जायजा नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही हैदराबाद को आलमी मियार का खूबसूरत शहर बना सकती है और अवाम से अपील की कि आने वाले जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी को कामयाब बनाएं। कांग्रेस लीडर कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने धान की खरीदारी को लेकर अपोजिशन जमातों के इल्जामात को सही बताया है। कांग्रेस लीडर ने अनाज की खरीदारी में हो रही ताकीर और लापरवाही पर मौज़रत ख्वाही की है। रुकन असेंबली ने चोटुप्पल भी अनाज के गोदामों का मुआयना किया। उनका कहना था कि किसानों की मुश्किलात हकीकी हैं और इस मामले पर हम सब परेशान हैं। इससे पहले भी कोमाटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी हुकूमत पर तंज कर चुके हैं। के कविता ने ए रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें जालिम करार दिया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत जालिमाना तर्ज अमल इख्तियार कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत गरीब खवातीन के घरों को मुनहदिम करके उनका सुकून छीन रही है, जबकि अवाम को झूठे वादों से गुमराह किया जा रहा है। कविता ने धर्म समाज पार्टी सदर विशारदन महाराज वेलुगुमटला परगी और ट्रिपल आर मुतासरीन के साथ गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से लोक भवन में मुलाकात की। इस दौरान घरों की मसमारी, जमीन के हुसूल और ट्रिपल आर अलॉटमेंट में तब्दीली जैसे मसाइल गवर्नर के सामने रखे गए। कविता ने कहा कि उनकी तहरीक के बाइस वेलुगुमटला मुतासरीन को उसी मकाम पर ज़मीन देने पर हुकूमत रजामंदी हुई है, जबकि परगी और ट्रिपल आर के लिए ज़मीन के हुसूल का अमल भी रोका गया। उन्होंने कहा कि अगर मुतासरीन को इंसाफ न मिला तो आइंदा मजीद एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने किसानों के मसाइल उठाते हुए कहा कि मुख्तलिफ अजला में धान अब भी खरीदारी मराकज़ पर पड़ा हुआ है और हुकूमत फौरी तौर पर किसानों से धान खरीदे।
मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है। खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गोया घोड़े पर सवार सरपट भाग रही हैं। अवाम पहले ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, अब सीएनजी भी आम आदमी की जेब खाली कर रही है। आज मंगल को दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। दारुलहुकूमत इलाके में पीर तक सीएनजी की कीमत 81.09 रुपए थी। अब 2 रुपए इजाफे के बाद दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। आम लोगों के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता 12 दिनों में चौथी बार सीएनजी की कीमत में इजाफा किया गया है। आज 26 मई को कीमत में इजाफे से पहले हफ्ता 23 मई को भी सीएनजी 1 रुपए महंगी हुई थी। इस वक्त कीमत 80.09 रुपए से बढ़कर 81.09 रुपए हो गई थी। पूरे मई माह की बात करें तो अब तक 4 बार कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। लगातार बढ़ती कीमतों से गाड़ी चलाने वालों का बजट बिगड़ गया है। सीपीआई माविस्ट के 2 सीनियर रोपोश माविस्टों ने डीजीपी सीवी आनंद के रूबरू खुदसुपुर्दगी इख्तियार की है। खुदसुपुर्द माविस्टों की शनाख्त पासुनूरी, नरहरी और दानम्मा की हैसियत से की गई है। डीजीपी सीवी आनंद ने दोनों माविस्टों की तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों माविस्टों पर बितरतीब 20 और 25 लाख रुपए का इनाम था। नरहरी बिहार और झारखंड के हुदूद में सरगर्म था और तकरीबन 44 साल से रोपोश था। दोनों खुदसुपुर्द होने वाले माविस्टों को रकमी इमदाद फराहम की गई। डीजीपी ने बताया कि माविस्ट तहरीक खत्म होने के करीब है। रियासत में साल 2024 से अब तक 822 माविस्ट खुद सुपुर्द हो चुके हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के दबीरपुरा डिवीजन में 5 करोड़ 96 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागाबौली की सड़क, NP2 पाइप, कब्रिस्तानों के कामों के अलावा आसपास के इलाकों में सड़कों के काम किए गए हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि 2 दिनों के दौरान 12 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने बताया कि हल्के के माबाकी डिवीजन्स में भी तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जल्द इनका भी इफ्तिताह अमल में आएगा। मंगल को सदर मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। दबीरपुरा डिवीजन में आज इनाग्रेशन अमल में आए हैं डेवलपमेंट वर्क के 5 करोड़ 96 लाख के। नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों ये इफ्तिताह अमल में आया है, जिसके अंदर जो नागावली की मेन रोड है, पूरी रोड और NP2 पाइपलाइन है, उसके अलावा अतराफ के तमाम रोड्स है और ग्रेवयार्ड का डेवलपमेंट है। ये सब का जो काम है वो 5 करोड़ 96 लाख का। 2 दिन में दबीरपुरा डिवीजन के अंदर जो इनाग्रेशन अमल में आए 12 करोड़ 24 लाख रुपए के इनाग्रेशन अमल में आए। नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अल्हम्दुलिल्लाह तेजी की तरफ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ के जा रही है। अभी माँ बाकी जो डिवीजन है हमारे संतोष नगर है, कुरमागुड़ा है, IS सदन है, धौलीपुरा है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी इनाग्रेशन अमल में आएंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने महकमे आबरसानी व सीवरेज के अहदेदारों के हमरा सालहीन कॉलोनी और संजय गांधी नगर का दौरा करके मुतासरा पीने के पानी की पाइपलाइन का मुआयना किया, जिससे पीने के पानी की सरबराही में खलल पड़ा है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने अहदेदारों को सख्त हिदायत दी कि वो फौरी मरम्मती काम करके पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे।
सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए, जिससे 54 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स हासिल करने वालों ने रियाजुल हसन आफंदी और मीर जुल्फ़िकार अली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैयद आसिफ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। गुंटाला बेगम पेट की मौकूफ़ा आराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती वक्फ बोर्ड ने बोर्ड के जिस अमले को जिम्मेदारियां दी हैं, वही अरकान अमला मुबैना तौर पर लैंड ग्रैबर्स से साज़बाज़ किए हुए है। गुंटाला बेगम पेट ईदगाह व मस्जिद आलमगीर के तहत 90 एकड़ 17 गुंटे की कीमती आराजी मौकूफ़ा है। मुख्तलिफ वज़राए आला और अहम कायदीन ने वक्तन फ़ौक्तन इस मौकूफ़ा आराजी के तहफ़्फ़ुज़ और हिसारबंदी के वादे भी किए हैं। हालिया दिनों में तेलंगाना के वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन और दीगर कायदीन भी इस आराजी का मुआयना कर चुके हैं। मस्जिद कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मजलिस के इब्तदाई के अहदेदार मोहम्मद जाहिद ने इस आराजी के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ बोर्ड के अमले के लैंड ग्रैबर्स के साथ मुबैना ताल्लुकात के सबूत के साथ CEO वक्फ बोर्ड को एक अर्जी दी थी। इसमें बोर्ड के 8 मुलाजिमीन के नामों की निशानदही करते हुए मुबैना लैंड ग्रैबर्स के नाम भी पेश किए थे। उन्होंने बताया कि 20 दिन गुजर जाने के बाद भी वक्फ बोर्ड खुसूस में कार्रवाई करने से कासिर रहा है और उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर अंदरून एक हफ्ता इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। कांग्रेसी लीडर्स और वज़रा पर तंज करने वाले जगतियाल के आरटीसी ड्राइवर को बरतरफ कर दिया गया है। आरटीसी के जनरल मैनेजर ने इस सिलसिले में एक मेमो जारी किया और ड्राइवर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बताया गया कि जगतियाल मंडल कांग्रेस के सदर लक्ष्मण की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडर्स पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर आरटीसी ड्राइवर ने रियासती वजीर ए लक्ष्मण और रुकन असम्बली संजय कुमार पर यह कहकर तंज किया कि पहले धान खरीदें, बाद में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज करें। इसी बात को लेकर कांग्रेस के लीडर्स बरहम हो गए और आरटीसी में शिकायत की, जिसके बाद ड्राइवर को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। बीआरएस पार्टी ने ड्राइवर अशोक की फौरी बहाली का मुतालबा किया है। कुल हिंद मरकजी बज़्म मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से 5 रोज़ा खुलफाए राशिदीन कॉन्फ्रेंस का 3 जून से आगाज़ होगा। 3 जून को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 4 जून को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 5 जून को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 6 जून को अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर खिताबात होंगे। मस्जिद हज़रत मौलवी मोहम्मद जमा खान साहब शहीद रूपलाल बाजार में इजलास बाद नमाज मगरिब मुनक़िद होंगे। उलमा व मशाइखीन के खिताबात होंगे। हाइड्रा की जानिब से कोकापेट चेरू के पास गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि हाइड्रा की टीमों ने कई कंपाउंड वॉल्स को मुनहदिम कर दिया। इस मौके पर पुलिस का भी वसी तर बंदोबस्त देखा गया। रियासती डीजीपी CV आनंद ने एडवोकेट ख्वाजा मोइजुद्दीन के कत्ल की तहकीकात से मुतालिक बताया कि जल्द ही कमिश्नर पुलिस हैदराबाद इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बताया कि इस केस की कोई सियासी नौयत नहीं है और कोई सियासत मुलविस नहीं है। जल्द ही मीडिया को इसकी तफसीलात से वाकिफ करवाया जाएगा। There'll be a full word and a press meet soon by the CP Hyderabad. How can I say that on record? Because it's going on. I can't say such. It's going political, sir. So No, it is not going political. There's nothing. Politics is created by media, not by anyone else. There's nothing. No politics involved. The entire Congress case, leader involved? the entire conspiracy is busted, and very soon you will hear the details. सर बकरीद फेस्टिवल है उसके फेस्टिवल को लेकर अभी यहाँ बकरीद गए, यहाँ पे बकरीद गए। अब हिंदी में भी बोल दिया बस। तेलंगाना की महकमा इंसदाद ACB की टीम ने शाहमीरपेट तहसीलदार दफ्तर पर धावा करते हुए पहले तहसीलदार के ड्राइवर को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। ACB के मुताबिक ड्राइवर रिश्वत की रकम तहसीलदार सुचित्रा को हवाले करने वाला था। शिकायत मिलने पर ड्राइवर और तहसीलदार सुचित्रा को जाल बिछाकर पकड़ा गया है। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं।
टास्क फोर्स शमशाबाद जोन और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने ऑटो और दूसरी गाड़ियों की बैटरियों के सरके में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बहादुरपुरा के साकिनान अकबर और फैजुल्लाह खान को गिरफ्तार करते हुए 7 लाख रुपए मालियत की 12 बैटरियों को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक अकबर ने आदि बटला हुदूद में सरके की वारदात अंजाम दी थी। इसे गिरफ्तारी के बाद अदालती तहवील में चंचलगुड़ा जेल भेजा गया था। जेल में वो फैज खान के साथ राब्ते में आया और दोनों ने जमानत पर रिहाई के बाद सरके की वारदातों का मंसूबा बनाया। जरचल्ला महबूबनगर टाउन पुलिस स्टेशन के तहत सरके की वारदातें अंजाम दी। पुलिस ने तहकीकात करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। कोम्पल्ली जयभरी कॉलोनी में तलाई चेन छीनने की संगीन वारदात पेश आई है। बताया जाता है कि सारिक तेल की दुकान में दाखिल हुआ और वहां मौजूद खातून के गले से तलाई चेन छीनने लगा। खातून की तरफ से बज़ाहमत की गई तो सारिक ने उसके साथ मुबैना मारपीट की। ताम खातून की चीखों पुकार पर मुकामी लोग जमा हो गए और सारिक को रंगे हाथों पकड़ा। उसकी जमकर पिटाई की गई। बाद में से पुलिस के हवाले कर दिया गया। सारिक की चोरी की वारदात की कोशिश सीसीटीवी में भी कैद हुई है। मुतल्लिका पुलिस तहकीकात कर रही है। हैदराबाद के एमजीबीएस डिपो में अचानक बस में धुआं निकलने के बाद आग लग गई। डिपो में अफरा तफरी देखी गई। बस में जो मुसाफिरीन सवार थे उनकी खिड़कियों से कूदकर बाहर निकलने की इत्तला मिली है। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को भी इत्तला दी गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। तहकीकात जारी है। काचीगुड़ा पुलिस ने पीर की रात काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन की पटरियों के पास खुदकुशी की कोशिश करने वाले नौजवान को बचा लिया। बताया गया है कि 24 साला नौजवान प्लेटफॉर्म नंबर 5 की पटरियों के पास लेट गया था। सबसे पहले उसने अपने वालिद को फोन करके इत्तला दी थी कि वो ट्रेन की पटरियों पर लेटकर खुदकुशी करने जा रहा है। उसने रेलवे स्टेशन का नाम भी बताया था। पुलिस ने फौरी मुकामे वाक़या पहुंचकर नौजवान को बचा लिया। नौजवान की शनाख्त निरंजन की हैसियत से की गई है। पुलिस की तरफ से निरंजन की काउंसलिंग की गई है। बंजारा हिल्स पुलिस ने जेप्टो के एक डिलीवरी बॉय के खिलाफ सड़क पर करतबबाजी और खतरनाक राइडिंग के सिलसिले में केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि 19 साला नौजवान करतबबाजी का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। ये वीडियो केबीआर मेन रोड और शामिरपेट के दरमियान का बताया गया है। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले गुट्टी मंडल के पास खानगी बस उलट गई। ये बस हैदराबाद से अनंतपुर जा रही थी। टायर के फटने से यह हादसा हुआ है। बस में 24 मुसाफिरीन सवार थे। 13 शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हैदराबाद पेद्दांबरपेट आउटर रिंग रोड के पास एयर इंडिया की बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बस शमशाबाद एयरपोर्ट वर्कशॉप से ऑटो नगर सर्विसिंग के लिए ले जाई जा रही थी। अचानक बस से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने बस रोक दी और फिर इसके बाद बस में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और क्लीनर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। नाचारम पुलिस स्टेशन के हुदूद कदीम नाचारम में 16 साला लड़की ज्ञानेश्वरी ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। लड़की ने 9वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद तालीम को तर्क कर दिया था। खुदकुशी की वजूहात का फिलफोर पता नहीं चल सका है। पुलिस ने जाए वाक़या पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना रवाना किया और केस रजिस्टर करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी
सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। लाखों बंदगान तौहीद हज की सआदत से मुशर्रफ। अरफात की वादी सफ़ेद चादर से ढक गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक और अल्लाह की हम्द व सना से फ़ज़ाएं मुअत्तर। तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। सब्र करने वालों के लिए अजर अजीम है। मस्जिद निमराह में खुतबे हज। आने वाले हालात के पेश नज़र पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। शहर में पानी की किल्लत पैदा न हो। रियासती वज़रा का आला सतही इजलास। मानसून की तैयारियों पर तबादले ख्याल। रजब पालना प्रगति प्रणाली का प्रोग्राम की तकमील पर 2 ta 12 जून रियासत भर में इख्तितामी तकारीब शानदार पैमाने पर मनाने का फैसला। काबीनी सब कमेटी का इजलास। शामीरपेट तहसीलदार ड्राइवर के जरिए रुश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार। ACB की कार्रवाई। और कोमपल्ली के इलाके में दुकान में दाखिल होकर तलाई चैन छीनने की कोशिश। खातून के साथ मारपीट करने वाला सारिक रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस के हवाले। ऑटो और दूसरी गाड़ियों की बैटरियों का सरका करने वाले 2 सारिक गिरफ्तार। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।